Okay. First of all, I would like to thank the Free Academy which invited me to for today's session, right? And really, Free Academy is doing great job in this areas and providing the free education to the all, right? So today, basically, my agenda would be on the discussion of JEE Main topics, right? JEE Mains examination. Okay. First of all, I'm briefing the. Okay. Good evening. Good evening. Good evening, Prakash ji. Okay. First, I would introduce myself short intro actually. Okay. So my name is Aditya Aman. Basically, I belong to Khagariya, Bihar, and I have done my BTech from NIT Surat in Mechanical Engineering 2020, right, in Corona time, of course. Then I got placed to one of the MNC's companies, and I work over there uh, approximately 1 year, you can say, and then I left those company because I was passionate about the teaching those. That's why I left those companies, and I'm actively working in the teaching areas since then. Approximately, it is going to be 2.5 years, right? Okay, this was my short intro, right? Okay. Now, first of all, I'm discussing the agendas of today's session, right? Okay. So first one, we will cover the introduction of ITJE main examination, right, which was formerly known as AIT Tripoli, right? Okay, then exam pattern, exam criteria, syllabus, study materials, and which study materials you should follow, right? Then important chapters, and actually all chapters are important. We can't ignore any chapters, right? But some chapters are really that weightage is too much, so you must have to keep in mind while preparing those chapters, right? You can't skip those chapters because most of the time more than 50% or 75% questions asked from there, right? Okay. So study materials, we will discuss about study materials, important chapters. Then management, which is the crucial things you must have to keep in your mind while during the preparation also, and the time management during the examination also, right? In those perspective, we will talk on that point, right? Okay. Then previous year practice, okay, which is also important. Then test series and paper analysis. After the test series, paper analysis, and tips and tricks. And last, in the last, I will give my some experience from my side, right? And some motivation tips I will share with you. Okay. So let's start now, right? Okay. Introduction. First of all, we will talk about the introduction of ITJ main examination. As you all know, uh, the previous, it was named as the AIT Tripoli, which was known as All India Engineering Entrance Examination, right? It was actually started in 2002, and until 2012, it was the AIT Tripoli only, and it was conducted once in a year. After that, it was named as a uh, joint JEE Mains examination, right? उसके बाद ये इसका जेई मेन एग्जामिनेशन नेमिंग किया गया, राइट? अच्छा। तो ये जेई मेन एग्जामिनेशन को देने का पर्पस ये है कि आप इससे बहुत सारे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, यू कैन टेक एडमिशन दोज प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक एनआईटी, some CFTI, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन, एंड GFTI, सम गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट? जो अंडर ग्रेजुएट सेक्शन है उसमें, जैसे कि आप बीटेक के लिए जा रहे हैं या फिर बी आर्क के लिए जा रहे हैं, राइट, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है? ओके। अच्छा, इस एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम के पैटर्न में अगर आप बीटेक के लिए देख रहे हो, तो उस केस में बीटेक के लिए आपको जो पीसीएम आस्क करता है ना, पीसीएम आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, राइट? ओके। एंड अगर आप बी आर्क के लिए देख रहे हैं, तो बी आर्क के लिए देख रहे हैं, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और आपके जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग होना चाहिए, सेम टाइम, एंड प्लानिंग भी होना चाहिए वो आपके सब्जेक्ट में, राइट? उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? ओके। जो जो बी बी आर्किटेक्चर वाले देख रहे हैं, उसके लिए तो दो पेपर होते हैं कंडक्ट, राइट? लेकिन इसके लिए जो बीटेक के लिए है, उसके लिए आपको सिंगल पेपर कंडक्ट किया जाता है, राइट? ओके।
अच्छा, अब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया सिंपली इज दैट कि यू यू मस्ट हैव टू आइदर अपीयरिंग इन 12th और यू शुड पास इन द 12th, राइट, with the equivalent subject, right, or equivalent examination. Okay. And and the second thing is that you must have the 75% if you belongs to the general category. अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75% बोर्ड में होना चाहिए, और इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन है, राइट, उसमें जाने 75% होना चाहिए। एंड इफ यू बिलोंग टू SC ST कैटेगरी, देन इन दैट केस यू हैव द 65% एग्जामिनेशन इन दैट बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट, 12th। ठीक है। ओके। अच्छा, एज लिमिट की अगर बात करें कि एज लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है, एज लिमिट में कोई बार नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन आप इसको इस एग्जामिनेशन को कंजिक्यूटिव 3 इयर्स ही दे सकते हैं, उसके बाद है ना आप उसको नहीं दे सकते हैं, राइट। जब हमने दिया था उस टाइम जो एग्जामिनेशन था उस टाइम 1 ईयर में एक बार ही कंडक्ट होते थे, राइट। अभी तो 1 ईयर में 2 बार कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया है, राइट। जैसे कि अभी अगर मतलब 2020 की बात करूँ तो 2020 और 2021 में जो है 2020 में कोरोना पेंडेमिक की वजह से एक ही बार एग्जामिनेशन हुआ, एक बार भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो 2021 में जो एग्जामिनेशन हुए थे, ये जेईई मेन के हिस्ट्री में या फिर यूँ बोले AIEEE की हिस्ट्री में पहला बार था कि एक साल में 4 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे, ठीक है। क्योंकि 2020 का जो बचा था 2 एग्जामिनेशन, वो भी उसको उस टाइम है ना कंडक्ट करवा दिया गया, ठीक है। ओके। अच्छा, ये जो एग्जामिनेशन जो लेती पहले जो लेती थी CBSE लेती थी, अब फ्रॉम 2018 onward, right, one committee was established by the external ministry, education ministry, NTA, right, NTA अब वो है ना उस एग्जाम को कंडक्ट करता है, which conducts 2 times in a year, right. If you will talk about 2024 एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे सकते हो जनवरी में, which will be mostly conducted in the last week of January, right. एंड जो सेकेंड आपका अटेम्प्ट है वो आप दे सकते हो अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में उसका एग्जामिनेशन है, राइट। ओके। ये था इसका थोड़ा बहुत है ना इन्फॉर्मेशन, आपके एग्जाम पैटर्न हो गए, एग्जाम का क्राइटेरिया हो गया, राइट। क्राइटेरिया अपन डिस्कस कर लिए, 75% आपके जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में होने चाहिए 12th में, या फिर अपियरिंग हो सकते हैं या फिर पास हो सकते हो, बोथ आर इक्वल, राइट। एंड यू कैन अटेम्प्ट ओनली 3 times in a year. Okay, now we will go for the study materials, right. इन केस अगर आप कुछ कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, राइट, तो फिर जाके वहाँ पे जो आपके मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपके मतलब रिस्पेक्टिव जो भी टॉपिक खत्म होते हैं उसके मॉड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल्स आप अगर आपको मिल रहे हैं तो देन दैट इज सफिशिएंट, है ना। यू डोंट हैव टू गो फॉर द हायर नंबर ऑफ बुक्स एंड ऑल द थिंग्स स्टफ, बिकॉज सिंपली अगर आप उसके लिए जाओगे तो इन दैट केस यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट। बिकॉज वो मटेरियल्स इतने स्पेसिफाइड होते हैं कि यू डोंट हैव टू सॉल्व एनी अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, राइट। बिकॉज वो कवर कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो उस केस में अगर अगर इन केस यू आर प्रिपेयरिंग मीन्स अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं, राइट, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में मैं कुछ बुक को रिकमेंड करूंगा। जैसे कि फिजिक्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो जैसे कि अभी भी अगर SC वर्मा साहब की बात करूं तो वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट बुक्स, राइट। लेकिन उसके साथ अगर फिर आपको क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो उस केस में आपको आपको जो है जैसे DC पांडे साहब की बुक है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और अदर जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो उस केस में आप जो है ये वाला जो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है, दैट इज रियली नाइस बुक, राइट। आपके वो जो या फिर टाटा मैग्रो हिल्स की जो बुक आती है, वो आप कोई भी बुक्स उठा लो, वो जो है ना बहुत अच्छी बुक्स आती है, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के लिए, और मैं इसके लिए फिजिक्स के लिए अपन बात कर दिया, और केमिस्ट्री के लिए बात कर दिया, ठीक है। तो ये बुक आप है ना यू कैन पिक फ्रॉम द सिंगल पब्लिकेशन, राइट। ओके। ओपन सोर्स में भी आप तो ऑनलाइन जो है ना बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं ना, ओपन सोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। आप आपके बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब से भी आप जो है ना आप देख सकते हो, लेक्चर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, राइट।
कई जगह टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, वहाँ से आप क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, है ना, अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो। ठीक है। ओके। नाउ वी आर हैविंग इम्पोर्टेंट चैप्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, राइट। ऑल्दो जैसा कि हमने बात किया था कि ऑल चैप्टर्स आर इक्वली रिलेवेंट चैप्टर्स, राइट, यू कांट एस्किप दो चैप्टर्स, बट लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर टू यू, है ना। तो वो बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे कि मैं अगर फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको मेहनत कम लगता है, लेकिन उसके मार्क्स जो है ना आपके जो मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, राइट। जैसे कि मैं उसमें चैप्टर कुछ चैप्टर्स का जैसे कि नाम लेता हूँ, जैसे कि यूनिट्स एंड जो डायमेंशन वाले चैप्टर हैं, उसमें इतना ज़्यादा जो है ना कुछ है नहीं, ठीक है। आपको डायमेंशन लिखने होते हैं और एरर एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन जो है ना आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको जो है ना बहुत आसानी से मार्क्स दे के जाते हैं, ठीक है। अगर अपन दूसरा हम बात करें, काइनेमेटिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, फिर केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर हो गया, ये सब मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना, वो सब जो है ना क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको सीधा देखने के बाद ही आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। उसमें कुछ तो है नहीं ज़्यादा। फिर ईएम बेस्ड हो गया, ईएम बेस्ड भी छोटे से चैप्टर है, लेकिन आपको मार्क्स दिख जाते हैं, तो ये सब चैप्टर नहीं छोड़ने का, ठीक है। फिर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स तो समझो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो उससे पूछते ही पूछते हैं, तो ये दीज चैप्टर्स यू कांट स्किप, राइट। ये सब चैप्टर्स आपको ध्यान रखो, सेमीकंडक्टर्स हो गया, और रे ऑप्टिक्स का भी फॉर्मूला बेस्ड जो है ना सवाल आते हैं, तो उसको भी आप जो है ना नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है मैंने, ठीक है। वैसे तो करना तो सब है, लेकिन दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रिगार्डिंग द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। मैथ्स की अगर बात करें, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में वैसे तो कैलकुलस बोलते हैं कि कैलकुलस आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, राइट। उसमें से भी मैं जो है जो 10 ईयर्स का जो 10 ईयर्स में जो मोर देन 50% क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये सारे जो है ना जो आपके चैप्टर से वहाँ से पूछे गए हैं कैलकुलस में, ठीक है। वैसे आपको पूरा कैलकुलस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया इन एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। दूसरा लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एक है ना, चैप्टर से वो पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस पार्ट देखें तो, ठीक है। फिर आपके उसमें वेक्टर्स एंड 3D हो गए, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, अलजेब्रा वाला जो सेक्शन है, राइट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गए। फिर कोनिक सेक्शन हो गया, जिसमें आप वो सब पढ़ते हैं ना, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, वो सब जो पार्ट है वहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, ये इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ओके। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक सेक्शन में अगर जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, राइट। इफ वी विल गो फॉर और अच्छा, इफ यू विल गो फॉर ऑर्गेनिक पार्ट्स में आपको अल्डिहाइड्स, कीटोन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, राइट, डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोकार्बन्स वाले जो सेक्शंस हो गए, है ना, हेलोल्कीन्स, हेलोरिन्स, राइट, ये सब चीज़ें हैं, आपको ये सब चैप्टर पे खासा फोकस रखना है, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि आपका जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, हालांकि फिजिक्स में भी दैट इज इम्पोर्टेंट, एज वेल एज केमिस्ट्री में भी ये इम्पोर्टेंट है, राइट। थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री वाला सेक्शन, राइट, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री वाला हो गया, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब चैप्टर जो है ना, दैट इज रियली, है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे चैप्टर जो है ना, ये इसलिए उसमें इंक्लूड किया गया सिलेबस में, ताकि मतलब ताकि आप सबको पढ़ो, ठीक है। अगर इतना ही चैप्टर जितना मैं बोला इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो और सब चैप्टर रखते क्यों, ठीक है, बात ये है। तो आपको सारे चैप्टर को उतने ही शिद्दत के साथ पढ़ना है, अगर आपका टाइम कम है ना, और अगर पढ़ रहे हैं तो ये जो जो चैप्टर का मैंने नाम बोला है ना, दीज ऑल चैप्टर्स यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। नाउ नाउ अपने पास जो है, अब टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट
कि अगर बात करें टाइम मैनेजमेंट, जब आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है, जब आप पढ़ रहे होते हो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं मैंने देखा है कि मतलब एक ही क्वेश्चन में से लगे हुए हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक उसको टाइम बाउंड मैनर, लेट्स से कि आपके पास 10 क्वेश्चन का जो है ना एक आपके पास पेज है, राइट, उसमें 10 क्वेश्चन है, उसको आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे उसको, ठीक है, क्या आप पूरे दिन लगाओगे उसमें, है ना, पूरे दिन लगाओगे, फिर जाकर टाइम मैनेजमेंट का आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए जो है सारे सब्जेक्ट के लिए आपको एक टाइम के साथ टाइम से बांधना पड़ेगा। जैसे कि आप फिजिक्स के लिए मान के चलिए कि आपके पास 12 घंटे का टाइम है, ठीक है ना, यू आर स्टडिंग 12 आवर्स अ डे, ठीक है, उसमें आपको सब सब्जेक्ट को एक बराबर तरीके से देखना है, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है तो उसमें हो सकता है आपको जो है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट अफेक्ट होती है तो दैट विल अफेक्ट योर रैंक्स, राइट, दैट विल अफेक्ट योर परसेंटाइल, ठीक है। तो उसको अफेक्ट ना होने देना है, इसलिए आपको इक्वल मैनर में सबको पढ़ना है ना। 12 आवर्स आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको 4 4 आवर्स जो है ना सारे चैप्टर्स को इस तरह से बांटना चाहिए, है ना। इन केस अगर आपको कोई चैप्टर वीक है, इन दैट केस यू कैन फोकस, किसी चैप्टर पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा आपका वीक है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अब है अपने पास एक नेक्स्ट चीज़ें जो है PYQ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ये चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इन दैट केस आप जो रियल क्वेश्चन किस तरह का आते हैं, है ना, आपको ये आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको ये आइडिया लगता है, ये आइडिया लगता है कि कि जो एग्ज़ाम, जो रियल एग्जामिनेशन है, रियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह के पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए PYQ क्वेश्चन को सॉल्व तो करना है, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में उसको सॉल्व करना है, राइट। अगर आप 30 क्वेश्चन का कुछ सीरीज उठा रहे हो, राइट, 30 क्वेश्चन का सीरीज उठा रहे हो तो 30 क्वेश्चन में जो 1 घंटे का जो टाइमिंग है वही 1 घंटे में उसको सॉल्व करना है, ठीक है, 1 घंटे में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसी तरह से फिजिक्स का उठा रहे हैं तो उसका, केमिस्ट्री का उठा रहे हैं तो उसी को उसको सबको जो है एक एक घंटे में अटेम्प्ट लेना है। तब आपको जो है ना पता चलेगा कि भाई आप उस टाइम में, है ना, उस आपकी आपकी स्ट्रेंथ कितनी, आपकी कैपेबिलिटी कितनी, आप प्रेशर को कितना हैंडल कर पा रहे हैं और कितना एक्यूरेसी के साथ उस चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट, जितना कि जितना कि आप जो है ना रेगुलर टाइम देते हो पढ़ने में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है ना दिमाग में रखना है, ठीक है। तो PYQ प्रैक्टिस दैट इज नेसेसरी एंड यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस द PYQ क्वेश्चन। आजकल तो इतने सारे क्वेश्चन PYQ का आ गए कि क्योंकि एक साल में इतने सारे जो है ना आपके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, एक मतलब 4 दिन 5 दिन तक एग्जाम चलता है, तो हर एक शिफ्ट में है ना 2 पेपर्स आते हैं, तो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आर हैव, है ना, यू आर हैविंग, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप कलेक्ट करो और उसको सॉल्व करो, है ना। मैं तो ऐसा आपको सजेस्ट करूंगा कि PYQ आपको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगता है और आपकी अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो फिर जाके एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस आप पे बिल्डअप होता है, ठीक है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, राइट। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ज्वाइन किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, एलन है, रेजुनेंस है ना, बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज है, उसको उसको देना है। और टेस्ट सीरीज देने के बाद सो नहीं जाना है, क्यों, उसको जो है ना एक बार एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अटेम्प्ट जो कर रहे हो तो उस टाइम जो है जल्दी जल्दी चक्कर में कई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर बैठते हो, ठीक है। सिली मिस्टेक की तरह अगर किसी का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन चमक ही नहीं रहा है जिस टाइम आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो तो उसका एनालिसिस अगर आप फिर करते हैं तो वो गलतियां आपसे, आप ये करते हो कि वो गलतियां दोहराई नहीं। अगर वो गलतियां बार बार फिर दोहराती है तो फिर जाकर वो तो गलत बात है, राइट। तो वो गलती दोहराए नहीं, इसलिए आपको जो पेपर आप दे रहे हो, जो टेस्ट ऑफ सीरीज दे रहे हो, राइट, उसका एनालिसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, राइट। उससे आपको आइडिया लगता है, ठीक है। टाइम मैनर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, जो 3 आवर्स आपको मिलते हैं वो 3 आवर्स में आप क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट कर पाते हो और कितनी एक्यूरेसीज कर पाते हो, वो चीज़ें भी आपको पता लगती है, राइट। अच्छा, देखो, टेस्ट सीरीज का भी एक पार्ट होता है, जैसे कि सबसे पहले अपना पार्ट टेस्ट देते हैं। पार्ट टेस्ट
दे दिया, फिर जाके जो मेजर टेस्ट होते हैं, फिर जाके फुल लेंथ टेस्ट होता है। पार्ट टेस्ट मतलब कि आपने मान चलिए कि आप फिजिक्स में कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, राइट? लेट्स से काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स यू हैव कंप्लीटेड, राइट? यू हैव सॉल्व द मॉड्यूल एंड एवरीथिंग यू हैव कंप्लीटेड, बट उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसके लिए आप जो है एक को टेस्ट देना है। कौन सा? एक पार्ट टेस्ट देना है, एंड व्हिच इंक्लूड्स क्वेश्चन फ्रॉम काइनेमेटिक्स, राइट? काइनेमेटिक्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आपको देना है, और उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं ये हो गया। फिर जाके मेजर टेस्ट दीजिए। मेजर टेस्ट मतलब क्या कि कपल ऑफ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, दूसरा आपने एनएलएम पढ़ लिया, राइट? तो एनएलएम एंड काइनेमेटिक्स को मिला के जो मेजर टेस्ट बनेंगे, वो टेस्ट आपको देना चाहिए, राइट? फिर उस जाके उसमें जो है ना आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना स्कोर पर कर पा रहे हो, राइट? फिर उसका एनालिसिस करना। फिर आखिरी में जब आपके जो फाइनल सारा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, तो इन दैट केस यू हैव टू अटेम्प्ट द फुल लेंथ टेस्ट, राइट? वहाँ पर अपनी असली औकात पता चलती है कि भाई हम कितने पानी में हैं, राइट? वहाँ पर आपको पता चलता है, ठीक है? तो फुल लेंथ टेस्ट भी देना जरूरी है, ठीक है? तो ये फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, और उसका एनालिसिस तो बराबर ही करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, अब टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर बात करें, ठीक है? टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ये है कि जैसे कि आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, ठीक है? एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, तो उस टाइम कई बच्चे का जो फेवरेट होता है कुछ एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, राइट? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फिजिक्स अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट किया था पहले, राइट? क्योंकि क्योंकि एक सब्जेक्ट में कन्फर्म है, एक बार जो है ना एक सब्जेक्ट आपका पूरा जो है ना गो थ्रू हो जाता है, ठीक है? तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अटेम्प्ट करने से पहले, है ना, कोई भी चीज़ों का या फिजिक्स उठा रहे हैं या केमिस्ट्री उठा रहे हैं या मैथमेटिक्स उठा रहे हैं, ठीक है? अटेम्प्ट करने से पहले एक बार आप है ना पूरे पेपर को गो थ्रू कर लीजिए, है ना? क्योंकि कई क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं कि जिसको आपको देखते के साथ ही, जैसे कि मैं ईएम वेव्स की सेक्शन की मैं बात करूँ, उसको देखते के साथ ही आप जो को जो है ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप तुरंत टिक कर दोगे, राइट? इस तरह से आपको जो है ना अगर 20 क्वेश्चन भी निकल गए तो आपका है ना बहुत ज़्यादा बर्डन कम हो जाने वाला है, राइट? इतने क्वेश्चन, मेरा बिलीव मानो, मेरा विश्वास मानो, इतना क्वेश्चन तो रहता ही एग्जामिनेशन में, जिसको आप फॉर्मूला बेस्ड में या फिर मतलब 4 से 5 सेकंड में आप उसको निपटा सकते हैं, राइट? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप एक बार पूरा पेपर को देखिए, नज़रों से देखिए, फिर जाके उसमें जो जो हो गया फटाफट फटाफट हो गया उसको निकाल दिया, राइट? अब जाके फिर जाके आपको जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसको उठाइए, उसमें जो है उसमें भी ऐसे नहीं कि किसी क्वेश्चन में अटक गए तो उसी में टाइम को अपना बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं करना है, राइट? जो जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें जो जल्दी से सॉल्व हो पा रहा है, राइट? उसको अपने को करना है, फिर उसको आगे छोड़ देना, राइट? फिर उसी तरह से केमिस्ट्री को उठाइए, उसी तरह से मैथमेटिक्स को उठाइए, ठीक है? उसको उसी तरह से अटेम्प्ट करना है, राइट? उस तरह से अगर आप करते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका जो है ना हो चुका होता है। फिर जाके लास्ट में एक बार देखिए, अगर फिर आपके पास टाइम बचा हो तो फिर जाके लास्ट में देखिए, ठीक है? लास्ट में फिर जाके कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व उस टाइम, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अपने दिमाग की जो मेंटेलिटी है तो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन का, ठीक है? तो कई बार चीज़ें आसान रहती है, क्वेश्चन कोई आसान रहता है, लेकिन आप उसको जो है अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व कर पाते हैं, है ना? उसके बाद उसको जो देखते हो लास्ट में, तो एक और कॉन्फिडेंस की वजह से आपको है ना कई क्वेश्चन और सॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपको है ना बहुत हेल्प करेगी आपका कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग में। और आपका जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ऑफ कोर्स जो है ना आपके जो रैंक है मैक्सिमाइज होने वाली है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग्स इज दैट मोटिवेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अब देखिए, मोटिवेशन की बात अगर अपन करते हैं तो अगर आपको कुछ चीज़ करेक्ट करना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, अगर आपको क्रैक नहीं करना है तो कोई आपको करवा नहीं सकता है। मेरी सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है? अगर आप डिटरमिन्ड हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा, है ना? यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रॉक इट, राइट? तो आपको मोटिवेट रहने का सिंपल सा आंसर ये है कि आपको करना क्यों है। अगर आपको करना है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो, राइट? अगर आप किसी के वीडियो देख के जो है मोटिवेट होते हो तो वो फिर जाके मोटिवेशन जो है ना बस 1 घंटे में उतर जाती है, ठीक है? तो आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, ये है ना? आपको अगर व्हाई क्लियर है तो देन इन दैट केस आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना? डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें मोटिवेट करके रखेगी। फिर भी अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मोटिवेट होते हैं तो
कई बार देखते हैं ना अपने को कि अपने माता पिता कंडीशन जो है ना खराब रहता है, तो वो चीज़ें कई बार अपने को मोटिवेट करती है। कई बार दूसरे के वीडियो देख के अपन मोटिवेट होते हैं, तो ठीक है, तो उस तरह से अगर भी मोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट हो ही है, अच्छी बात है ना। तो उसको मोटिवेशन जो है ना आपको रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप, क्योंकि देखिए अभी इस साल की अगर अपन बात करें, है ना, मोर देन 12 लाख पीपल हैव रजिस्टर्ड फॉर द जेई मेंस एग्जामिनेशन, राइट। इस इतने ह्यूज नंबर में, ये अगर मैं बात करूं पिछले साल से, तो ये हाइक है। पिछले साल बिलो 10 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे, बट ये साल जो है ना नंबर इंक्रीज हो गए, ठीक है। नंबर इंक्रीज हो गए, लेकिन मैं अभी हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि, है ना, यू डोंट हैव टू अफ्रेड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो जो रजिस्ट्रेशन है, दैट इज सिंपली ए नंबर, राइट। only the 5% people are good in their study, and those 5% people are your competitors, right। रेस्ट ऑफ द जो 95% पीपल्स हैं, वो तो एक तरह से क्या है, सिर्फ एक इंक्रीज करने, नंबर इंक्रीज करने के लिए बढ़ दिया, है ना। अगर आप पैशनेट हैं, आप अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, एक सिलेबस जो है सीक्वेंस, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन को रख रहे हो, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, तो आपकी रैंक आने वाली है, और 100% आने वाली है ना, बिलीव मी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, ओके प्रकाश जी, वी विल टॉक द हाउ टू स्कोर द बूस्ट score in the examination. Okay, in the last we will discuss on this your message, right? We will discuss on this topic actually, right? Target with the respective to each subject, right? अगर टारगेट की बात करें तो इसमें जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू डोंट हैव टू स्कोर स्पेसिफिक मार्क्स इन सब्जेक्ट, राइट। जो कट ऑफ होते हैं, है ना, दैट कट ऑफ यू हैव टू क्वालिफाई, मींस दैट कट ऑफ इज वेरिएबल एक्चुअली, है ना। ये ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है इस बार ए फिक्स कर दिया जेई मैंने, राइट, नो। आपको बस एक जो कट ऑफ होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है। कट ऑफ हर एक साल जो है ना अलग अलग आती है। तो आप इतना ही कोशिश कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है ज़्यादा आप जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो, जिससे कि है ना आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो कट ऑफ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर आप एक्टिवली पढ़ रहे हैं तो कट ऑफ के लिए आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, राइट। अगर आप एक सही तरीके से जो सीक्वेंस होता है पढ़ाई की उस तरह से कर रहे हैं तो आपको कोई घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इसमें जेई मेन में कोई आपको स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कोई स्कोर नहीं करना होता है इसमें जेई मेन में, ठीक है। ये चीजें हैं। ओके, these all are the means today's discussions agenda, and होप सो कि आपको ये सही लगा होगा। अच्छा, एक मैं इसका कमेंट ले लेता हूँ, प्रकाश सर का क्या बोल रहे हैं। सर, हाउ टू बूस्ट स्कोर इन द एग्जामिनेशन। हाँ, हाउ टू बूस्ट इन द एग्जामिनेशन। सिंपली एक तो सिंपल सा, अगर कैजुअल अपन इसका आंसर दूँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो जैसा कि मैं बताया कि आपको सबसे पहले जैसे ही पेपर आपके जो है ना सामने में दिखा, है ना, अब तो पेन पेपर तो एग्जामिनेशन होते नहीं है, जो कि 2018 से पहले होता था, है ना, कोरोना से पहले होता था, अब तो सारे ऑनलाइन हो गए। तो जैसे ही आपके सामने पेपर दिखे, ठीक है, आपको एक जो सरसरी निगाह जो होती है ना, उससे पेपर को देखना है ना। उस केस में आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फाइंड करेंगे कि दैट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद इन अ 5 सेकंड, राइट। इवन 5 सेकंड, ज़्यादा ज़्यादा मैं कह सकता हूँ 20 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप पूरे पेपर को देखते हैं तो सारे सेक्शंस में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, राइट, सब में आपको जो है ना कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जिसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर एक बार पूरा पेपर आपने देख लिया, फिर से जो टाइम बचा, अब वो टाइम में आपको आइडिया लग गया है कहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस हैं, राइट। अब उसमें से आपका जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको उठाइए, उसको पिकअप कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं सबसे पहले फिजिक्स को उठाऊंगा, ठीक है। फिजिक्स में जो भी है ना, मतलब विद इन अ टाइम, मतलब अगर मान चलो कि एक मिनट या फिर 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट किसी क्वेश्चन को मैं दे पा रहा हूँ, राइट, उसमें अगर हो रहा है कोई क्वेश्चन उसको फटाफट सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री वाले सेक्शन में गए, इसी तरह से अपन फिजिक्स जो मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में गए, ठीक है। तो तो उसको अटेम्प्ट किया, फिर जाके जो है ना अपन आगे बढ़ते गए। इस तरह से है ना आप जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप अपने स्कोर को एग्जामिनेशन में, ठीक है। और इस तरह से ऐसा करने से आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है ना एग्जामिनेशन में मार्क्स आएंगे भी, और इससे आपकी रैंक भी बनेगी, राइट।
Okay, next question is that how to accuracy maintain in the examination. एक्यूरेसी का सिंपल सा कैलकुलेशन ये है कि अ, जैसे कि मैं अब अभी मैं बोला कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, आप टाइम बॉन्ड मैनर में सॉल्व करो पीवाईक्यू, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर आप टाइम बॉन्ड मैनर में करते हैं सॉल्व, ठीक है, तो इससे ही एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है। सडनली एट एग्जाम में एक्यूरेसी इम्प्रूव करने की बात अगर मैं करूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मुश्किल भी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम अपना एक तो दिमाग का प्रेशर रहता है, राइट, वो प्रेशर को मेंटेन करना और मीन वाइल आपको क्वेश्चन को रीड करना, फॉर्मूले कौन लगेंगे, क्या लगेंगे, नहीं लगेंगे, उसके बारे में सोचना तो मुश्किल होता है, ठीक है। फिर भी आप काम रह के, शांत रह के, ठीक है, जितना आपको आता है आपको अपने आप पे बिलीव रख के, है ना, इस चीज़ों को आप एक्यूरेट कर सकते हैं, एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर जो बच्चे अभी जो है ना कुछ नर्सरी बैच में है, नर्सरी बैच मतलब क्या है, जो 11 से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, है ना। दीज थिंग्स डेफिनेटली 100% आई गारंटी यू दिस विल इम्प्रूव योर एक्यूरेसी, राइट। एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी इम्प्रूव करने का एक सिंपल सा तरीका मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि आपको शांत रहना है, शांत रहना और शांत तरीके से है ना आपको सोचना है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो घबराना नहीं है, राइट। उस तरह के क्वेश्चन को सर्च सर्च मतलब सर्च करना है जो है ना आपसे जल्दी सॉल्व हो जाए, राइट। इस तरह से आप जो है आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। ये तरीके हैं आपके एक्यूरेसी मेंटेन करने के, राइट। एंड एनी मोर क्वेश्चन? ओके, होप सो कि आपको ये सेशन है ना अच्छा लगा होगा, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉलो दिस सेशन, एंड आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करेंगे, आपके जो रैंक जो है ना मैक्सिमम, आई होप सो, आई विल प्रे टू द गॉड आपकी जो है मार्क्स अच्छे आए, राइट। फ्री सेशन की जैसे कि अगर आप जैसे कि मैं भी है ना अभी यूट्यूब पे हूँ, तो आप फिजिक्स बाय ए एन NITS के नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, राइट, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। Physics by AANITS is the name of channel, right? Okay, all the various channels are available on the YouTube, right? You can go for that. Okay, okay, all. Thank you. Should we end up our discussion? Okay, thanks all of you for the joining this session.